Hello students and welcome to the video solutions of PSET Biology class 8. So question number 31, the very first question, which of the following comes under aquaculture? So aquaculture ये जो particular type का culture हो रहा है यहाँ पे हम लोग क्या use कर रहे हैं? We tend to focus upon aquatic organisms. तो primarily जो fishes वगैरह का culture हो रहा है वो हमारा फर्स्ट एक एग्जाम्पल आ सकता है. तो पीसी कल्चर दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर, राइट. लेकिन एक्वाकल्चर में और हम लोग क्या यहाँ पे कल्टिवेट कर सकते हैं? वी कैन गो फॉर अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि शेलफिश, ऑयस्टर्स, क्रैब्स वगैरह. यस, सो बाय द टाइम आई मेंशन दिस पॉइंट, what you can observe over there is out of the four options over there, crabs are the aquatic organism which can be considered as a component जो aquaculture में cultivate हो रहा है. Yes, so question number 31, the answer should be option B, crabs. Now question number 32, again ये agriculture से ही related हो रहा है. Which of the following is a grain? तो crops में जब हम लोग क्रॉप डिफरेंट टाइप्स के बोलते हैं तो ग्रेन क्रॉप्स जो हमारे पास हो रहे हैं, राइट. तो व्हाट आर दीज ग्रेन्स? ग्रेन्स कैन बी कंसिडर्ड एज दीज वेरी हार्ड फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स के जो सीड्स हो रहे हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी एडिबल. तुम्हारे डे टू डे लाइफ में जो सबसे कॉमन ग्रेन यू मस्ट हैव कम अक्रॉस, दे आर गोइंग टू बी राइस, व्हीट, मेज. यस, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो रहे हैं ग्रेन्स के. अब आउट ऑफ दीज फोर जो ग्रेन का एक एग्जाम्पल हो रहा है दैट इज मिलेट्स. अब मिलेट यहाँ पे एक प्लांट की बात नहीं हो रही है. मिलेट्स दे आर कंसिडर्ड टू बी दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स हु टेंड टू प्रोड्यूस वेरी स्मॉल साइज सीड्स, राइट. तो मिलेट्स के भी बहुत सारे वेराइटीज हो रहे हैं. तो तुम लोगों ने नाम सुने होंगे ज्वार, रागी, बाजरा. यस, सो दीज आर जस्ट डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर मिलेट्स. सो अ क्रॉप विच इज इन्वॉल्व इन ग्रेन फॉर्मेशन. So question number 32, the correct answer should be option A, millets. Now question number 33, जब भी हम लोग edible चीज़ों की बात कर रहे हैं, अब plants से, animals से हमने कोई food item acquire किया, वो हम day to day life में observe कर रहे हैं. But there are other plant या animal kingdom के अलावा भी हमारे पास kingdoms हो रहे हैं जिसके organisms they can be considered as edible. तो यहाँ पे जो question है वो है fungi से. So which of the following multicellular fungi? So you need to focus upon this point multicellular over here. Okay, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे examples दिए गए हैं ना, इसमें कौन सा multicellular है, कौन सा unicellular है, वो भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा. Multicellular fungi is edible in nature. तो यहाँ पे mushrooms, day to day life में जो हम लोग mushroom consume करते हैं, so what is mushroom? Mushroom is a type of a fungi and it's a very large structure that you're observing. तो definitely ये क्या हो रहा है? It's a multicellular structure. Hence, question number 33, the correct answer should be option C. Now, question number 34 is related to reproduction and the male-female gametes involved over there. तो इसमें जो A है, A is male gamete. अब column 2 में से ऐसे कौन से words हैं जो male gamete के साथ correct बैठ रहे हैं? So, male gamete is called to be the sperm cell. So, 1. And what we observe is that in majority of cases जो male gamete है, sperm cell है, it tends to be motile. वो point A से point B तक क्या कर सकता है? Move कर सकता है. Okay? So number 2, motile, ये भी यहाँ पे fit बैठ रहा है. Now B, that is the female gamete. तो female gamete को हम लोग commonly बोल रहे हैं egg cell या फिर ova. So option 3 जो point 3 है यहाँ पे ये correct बैठ रहा है. And generally it has been observed कि जो female gamete हो रहा है it tends to be non-motile. So इसका मतलब क्या हो रहा है? जो male gamete motile है तो जहाँ पे भी non-motile female gamete present होगा वो वहाँ तक move करेगा in order to make fertilization successful. तो B के साथ यहाँ पे 4 भी match हो रहा है. So A 1 and 2, B 3 and 4. So it means question number 34, the correct answer should be option A. Now question number 35 and 36 also, both of them, they're related with biodiversity and the environment around us. So question number 35, deforestation. तो deforestation का मतलब क्या हो रहा है कि एक एरिया में forest है, trees present है and for some purpose those trees have been cut down in a very large number. Deforestation causes increase in carbon dioxide. इतना तक मुझे क्या समझ में आ रहा है कि environment में जो भी CO2 हो रहा है उसको यूज कौन कर रहा है? ट्रीज, प्लांट्स यूज कर रहे हैं,
दे विल टेक अप दैट CO2, अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन। तो अब अगर हमारे आसपास बहुत लार्ज अमाउंट में ट्रीज प्रेजेंट है, तो अगर किसी कारण से व्हीकल्स से, इंडस्ट्रीज से लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज हो भी गया, सो व्हाट द ट्रीज आर गोइंग टू डू, दे विल टेक इट अप, तो एनवायरनमेंट में CO2 का लेवल लिमिट रह जाएगा। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया है तो उससे क्या हो जाएगा, CO2 इंक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि CO2 इंक्रीज होने की वजह से एनवायरनमेंट में इफेक्ट क्या पड़ रहा है। सो you must have come across a phenomenon called greenhouse effect. तो greenhouses are what? Greenhouses are these glass houses which take up या फिर which absorb solar energy, heat को वो absorb करते हैं, लेकिन ज़्यादा easily वो उस heat को escape नहीं करने देते। इसकी वजह से उस glass house के अंदर क्या हो रहा है, एक warm condition maintain रहता है। तो ऐसे green houses में हम लोग plants वगैरह grow कर सकते हैं। अब उस glass house को तुम compare करो अर्थ के साथ। अर्थ का जो atmosphere हो रहा है, okay? अभी के लिए फोकस करो ऑन द गैस CO2. देयर आर अदर कंपोनेंट्स आल्सो, बट लेट्स फोकस ऑन CO2 फॉर नाउ. तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी CO2 है वो काम क्या करता है, सनलाइट जो भी आ रहा है, जो भी सोलर एनर्जी, जो भी हीट आ रहा है, वो क्या करता है, उसको ट्रैप करके रखता है, उसको ईजिली वापस स्पेस में नहीं भेज रहा है वो, राइट? तो वो जो ट्रैप करके उस हीट को रख रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ वार्म रहता है। ये अर्थ का ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओके? अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर अर्थ का एक ऑप्टिमम वार्म टेम्परेचर मेंटेन रहा तो इसमें लाइफ फ्लरिश कर सकता है। सो वन मेजर रीजन व्हाई वी सी लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ इज बिकॉज आवर एटमॉस्फेयर इज डिजाइंड इन सच अ मैनर कि वो उस हीट को रिटेन कर सकता है। सो इट सीम्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट्स अ गुड थिंग, राइट? बट प्रॉब्लम कब होगा, अगर एनवायरमेंट में CO2 का अमाउंट बढ़ गया। अब पहले जो ऑप्टिमम लाइट वो या फिर ऑप्टिमम हीट वो ट्रैप कर रहा था, दैट वाज सफिशिएंट फॉर अस। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने लग गया तो अर्थ का भी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ग्लोबल टेम्परेचर्स थोड़ा बहुत भी इंक्रीज हो जाते हैं, what it results in is a phenomenon which is called to be global warming, and global warming will eventually result in large scale climate changes everywhere. बारिश के जो पैटर्न्स है, विंड पैटर्न्स जो हो रहे हैं, हर चीज़ों में वो क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। सो नाउ यू मेक द होल कनेक्शन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से CO2 एब्जॉर्प्शन होना कम हो गया, CO2 लेवल्स इंक्रीज्ड। CO2 लेवल इंक्रीज होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो गया, अर्थ ज़्यादा टेम्परेचर अभी यहाँ पे ट्रैप करने लग गया, हेंस ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग। यस, सो क्वेश्चन नंबर 35, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए, ग्लोबल वार्मिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 वो भी एनवायरमेंट से ही रिलेटेड हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी? तुम्हारे आसपास जो भी प्लांट एनिमल लाइफ का वेराइटी है, दिस वेराइटी इज कॉल्ड टू बी बायोडाइवर्सिटी। नाउ वी नो दैट एवरी अदर डे वी आर सीइंग दिस इन न्यूज़ दैट की जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे आसपास वो डिक्लाइन कर रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, ऐसे बहुत चीज़ों की वजह से बायोडाइवर्सिटी घट रहा है। बट क्वेश्चन में पूछा है विच इज़ नॉट अ कॉज। डिफॉरेस्टेशन ऑफ कोर्स इज अ कॉज। अगर पेड़ ही मैं काट रही हूँ तो वो डाइवर्सिटी तो लॉस हो रहा है। पोचिंग एंड हंटिंग, इन दोनों को एक साथ मिला के देखो। हंटिंग इज बेसिकली व्हेन यू आर आउट किलिंग एनिमल्स फॉर फूड, फॉर देयर स्किन, फॉर देयर टीथ, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। पोचिंग इज कंसिडर्ड टू बी इलीगल हंटिंग, कि हमने एक एरिया में बोला है कि ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको यूज नहीं करना है, इन एनिमल्स को हंट नहीं करना है। सो आउट ऑफ ग्रीड इफ आई एम गोइंग एंड डूइंग सम इलीगल हंटिंग, दैट इज कॉल्ड टू बी पोचिंग. So deforestation, poaching and hunting, all of them will result in biodiversity loss. But recycling of paper, this is actually good for the environment. पेड़ कटने से अच्छा है मैं एक ही पेपर को रिसाइकल अगर करूँ, so what will happen? Deforestation घटेगा, right? So it means not a cause of reduction in biodiversity. Option D, recycling of paper. Now question number 37, it's related to reproduction. In human beings, the correct sequence of events during reproduction is. तो ह्यूमन में नेक्स्ट जनरेशन बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा, जो मेल एंड फीमेल पेरेंट्स हो रहे हैं, दे शुड प्रोड्यूस गैमेट्स. जो मेल गैमेट अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, जो स्पर्म सेल हो रहा है, मोटाइल स्पर्म सेल, फीमेल गैमेट इज द नॉन मोटाइल ओवा. तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, गैमेट फॉर्मेशन. सो गैमेट फॉर्मेशन ये यहाँ पे बन रहा है. अब गैमेट सिर्फ बनने से नहीं होगा, द टू गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दे शुड फ्यूज, दैट इज द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन.
सो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आ गया है। फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? फर्स्ट चीज जो बनता है इट्स अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, दैट इज द जाइगोट। तो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है जाइगोट। लेकिन उस सिंगल सेल जाइगोट से ये पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी तो एक ही बार में नहीं बन पाएगा, तो जाइगोट क्या कर रहा है? ग्रेजुअली डिवाइड कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो जाइगोट आगे जाके क्या बना रहा है? इट्स रिजल्टिंग इन द एम्ब्रायो। सो गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रायो, ये हो रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सो क्वेश्चन नंबर 37, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, in humans the development of fertilized egg takes place in the, तो fertilized egg प्रीवियस वाले क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करो, fertilized जो egg होगा that will produce the zygote। अब इसी zygote को आगे एम्ब्रायो बनाना है। इन केस ऑफ ह्यूमंस तो हम क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन जो फीटस का, ये जो ह्यूमन बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, सो दैट जनरली टेक्स अराउंड 9 months, राइट। तो ये जो जाइगोट से लेके एक फीटस तक का ये जो पूरा डेवलपमेंट है, अनटिल एंड अनलेस द चाइल्ड इज रेडी टू बी बॉर्न, ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, ये कहाँ अकर हो रहा है? ये अकर होगा फीमेल बॉडी के यूटरस में। सो डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग दैट हैपेंस इन द यूटरस। सो क्वेश्चन नंबर 38, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। नाउ प्रीवियस दोनों जो क्वेश्चंस थे दे वर रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट देयर आर ऑर्गेनिजम्स हु आल्सो परफॉर्म asexual reproduction. Question number 39 is related to that. In which of the following reproduction method the offspring produced is identical to the parents? Parent के साथ अगर identical offspring बनाना है, the process is going to be asexual reproduction, right? यहाँ पे कोई gamete involved नहीं होगा, कोई fertilization involved नहीं होगा, directly simple mitosis के divisions के through daughter generation यहाँ पे form हो रहा है। अब asexual reproduction, that's the overall term for the process. In different organisms, you have different types of asexual reproduction. So, binary fission, it's the easiest method of asexual reproduction, generally observed, let's say, in case of amoeba. So, what will happen in binary fission? You have one cell, it will divide, it will split, to give rise to two daughter cells. कहीं पे भी meiosis, fertilization कुछ नहीं हुआ, so binary fission, asexual reproduction. Budding के केस में क्या हो रहा है? Budding can occur in case of animals like hydra. What will happen in budding? पेरेंट बॉडी से एक छोटा सा आउटग्रोथ बनेगा, यही आउटग्रोथ आगे डेवलप होते होते ऑलमोस्ट डॉटर जनरेशन बना रहा है। एक पॉइंट पे वो जो बड है, जो आउटग्रोथ है, इट विल ब्रेक एंड नाउ आई हैव अ डॉटर ऑर्गेनिज्म देयर। अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रैगमेंटेशन, व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रैगमेंटेशन? जनरली इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ लेट्स से एल्गी लाइक स्पाइरोगायरा। एल्गी जो स्पाइरोगायरा का फिलामेंट हो रहा है, फिलामेंटस स्पाइरोगायरा, वो क्या करेगा? वो बस स्प्लिट हो जाएगा इनटू पीसेस। ये जो pieces बन रहे हैं, ये जो fragments बन रहे हैं, each one of these fragments they can behave as a daughter spirogyra. तो again यहाँ पे भी क्या हो रहा है? Asexual. So it seems binary fission, budding, fragmentation all are resulting in asexual reproduction, organisms which are genetically identical to their parents. So question number 39, the correct answer should be option D. Now question number 40. Structure present in a cell which is responsible for determination of the sex of a baby is. तो it's the male and the female gametes which will decide कि आगे combine होके zygote बन रहा है, यही zygote, embryo, fetus उस baby का development करा रहा है। तो अब question ये हो रहा है कि ये जो baby है, is it going to be a male or a female child? ये कैसे decide किया जाता है? So what we see is this. Humans के केस में, okay, when we talk about not just humans, any organism, जो उसका कोई भी प्रॉपर्टी हो रहा है, वो exactly कौन डिसाइड करता है? उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन, which is DNA, deoxyribonucleic acid. अब ये DNA सेल में किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा in the form of chromosome. So in case of human males, the chromosome condition which is responsible for the male condition, that is XY, and human females के केस में this is XX. तो XY ये सब क्या हो रही है? ये सब chromosomes हैं, मतलब that is the genetic information and that decides the sex of that particular individual. अब male parent जब gamete बनाएगा तो आधे gametes में X chromosome जा रहा है, आधे gametes में Y chromosome जा रहा है। Female parent जब gamete बना रहा है, हर एक gamete में तो वो एक ही टाइप का chromosome जा रहा है X, तो दो बार नहीं लिखने से भी हो रहा है, एक ही टाइप का गैमेट बन रहा है। तो अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम और मदर से एक्स क्रोमोसोम आया तो आगे जाके दिस चाइल्ड इज व्हाट? दिस इज अ
फीमेल चाइल्ड। अगर फादर से वाई क्रोमोसोम और मदर से वाई क्रोमोसोम, सॉरी, अगर फादर से वाई क्रोमोसोम और मदर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, सो एक्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक मेल चाइल्ड। तो चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा, ये किसने डिसाइड किया? द क्रोमोसोम्स। हेंस द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40 शुड बी ऑप्शन डी, chromosomes. Now question number 41, which of the following glands is involved in the digestive system? तो यहाँ पे तुम ऑप्शंस देखो, एड्रिनल ग्लैंड, ये जो हो रहा है ये हमारा जो हार्मोनल सिस्टम हो रहा है, जो एंडोक्रिन सिस्टम हो रहा है, वो उसके साथ इन्वॉल्व है। थायराइड, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर एंडोक्रिन सिस्टम। ओवरी, दैट इज पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब पैनक्रियाज जो ग्लैंड हो रहा है ना, टेक्निकली पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, इंसुलिन भी एक हार्मोन है। तो फर्स्ट ग्लांस में व्हाट वी नो इज दिस, दैट दिस इज इन्वॉल्व्ड इन द एंडोक्रिन सिस्टम। बट पैनक्रियाज से जो भी तुम्हारे जूसेस रिलीज होते हैं, along with insulin there are a lot of other enzymes also present over there, other proteins उसमें present हैं। तो जो भी तुम्हारे पैनक्रियाज के secretions हो रहे हैं, they will eventually reach the small intestine। वहाँ पे वो क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। सो पैनक्रियाज इट सीम्स कि वो सिर्फ हार्मोन इंसुलिन ही नहीं बना रहा है, इट्स ऑल्सो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो कौन सा ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हो गया है? इट्स ऑप्शन बी, पैनक्रियाज। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, goiter occurs due to the deficiency of। सो goiter, ये जो कंडीशन हो रहा है, इट्स ऑब्जर्व टू बी अ स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो जब goiter हो रहा है तो इट्स ऑब्जर्व कि गले में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक स्वेलिंग जैसा हो रहा है। तो इसका मतलब इट्स द थायराइड ग्लैंड विच इज गेटिंग अफेक्टेड। तो इवेंचुअली जो थायराइड का हार्मोन हो रहा है उसी में कुछ डिफेक्ट की वजह से goiter का हमारे यहाँ पे कंडीशन क्रिएट हो रहा है। सो इट मीन्स goiter occurs due to deficiency of the hormone thyroxine, जो थायराइड सिक्रीट कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 42, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, which of the following cell organelles are not membrane bound? तो जब भी हम लोग प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स पढ़ते हैं तो एक चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं, एक कोर डिफरेंस ये है दैट प्रोकैरियोट्स दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, बट ऑन द अदर हैंड कुछ कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने के लिए यूकैरियोट के सेल में क्या है, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड रीजन्स। तो यहाँ पे पूछा है विच ऑर्गेनल इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स द पावर हाउस ऑफ द सेल, वहाँ पे एटीपी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक नहीं दो मेम्ब्रेन है, सो इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा एक और ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अगेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड। लाइसोसोम्स, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जिसके अंदर कुछ लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, वो ब्रेक कर सकते हैं। लाइसोसोम क्योंकि वो ब्रेक डाउन लाइसिस करते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। लेकिन ऑप्शन डी जो हो रहा है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। राइबोसोम्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस, बट जो राइबोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में है वैसा ही एक स्लाइटली डिफरेंट वर्जन ऑफ राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के पास भी है। तो इसका मतलब the versions might be different, the types might be different, but both eukaryotes and prokaryotes they contain what? They contain ribosomes for protein synthesis. अब अगर प्रोकैरियोट के पास कोई ऑर्गेनल है उसको तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ही होना पड़ेगा, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 43, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसमें कौन हो रहा है, राइबोसोम, सो ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, डीएनए एंड आरएनए आर फाउंड इन द। तो डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल हो रहा है और आरएनए जो उसी डीएनए को माइंड में रख के तुम्हारा फॉर्म होता है, तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू कराने के लिए आरएनए बन रहा है, इसी आरएनए से आगे जाके प्रोटीन्स बनेगा। तो डीएनए जहाँ पे प्रेजेंट है वहीं पे उस डीएनए को देख के क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। सो डीएनए एंड आरएनए टुगेदर दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट वेयर, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो क्वेश्चन नंबर 44, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए। Now we have the last question, question number 45. Read the following statements and select the correct option. Statement 1, cells differ greatly in size, shape and number. पूरा जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेस कंपोनेंट क्या है, सेल। अगर तुम्हारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इतने वेराइटीज आ रहा है
तो वो किस वजह से पॉसिबल होगा? उसकी कंस्टिट्यूएंट जो सेल्स है दे ऑल्सो शुड शो वेराइटी. सो अगर तुम अपने ही बॉडी में देखो, यू आर मेड अप ऑफ millions and millions of cells which are all variable with respect to size, with respect to shape, right? तो इसका मतलब पूरे लिविंग वर्ल्ड में तो डेफिनेटली और वेराइटी आएगा. सो सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड नंबर. तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 क्या हो रहा है यहाँ पे? करेक्ट. स्टेटमेंट 2 बोला है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव बॉडी मेड ऑफ अ सिंगल सेल. तो ऑन अ मेजर क्राइटेरिया जिससे हम ऑर्गेनिजम्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ सेल्स इट इज मेड अप ऑफ. सो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ एज ए ह्यूमन बीइंग आई एम मेड अप ऑफ millions and millions of cells. What am I? I am a multicellular organism. So my body is being formed by many cells. On the other hand, अगर तुम एग्जाम्पल लो अमीबा का या फिर एक बैक्टीरिया का, तो अमीबा का जो पूरा बॉडी है, द एंटायर बॉडी इज नथिंग बट जस्ट वन सेल. उसी तरीके से बैक्टीरिया का, द एंटायर बॉडी ऑफ बैक्टीरिया इट्स नथिंग बट जस्ट वन सेल. वो एक ही सेल सारे काम कर रहा है, न्यूट्रिशन एक्वायर करना, रेस्पिरेशन करना, सब काम कर पा रहा है. सो इट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में उनका जो बॉडी हो रहा है इट्स रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट अ सिंगल सेल. इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. सो क्वेश्चन नंबर 45, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी ऑप्शन A. So I think that your exam went well. अब जब हमने ये questions discuss किए तो जो भी तुम्हारे remaining कुछ doubts वगैरह थे they got cleared. So I wish you all the very best for your coming days. Thank you.